Okay. Phylum Porifera. Cycon, Skypha, Spongilla, freshwater sponge, Euspongia, bass sponge. Phylum Coelenterata. Phycelia, Portuguese man of war, Adamsia, sea anemone, Penadella, sea pen, Gorgonia, sea fan, Meandrina, brain coral, Aurelia, jellyfish, Obelia, poem. Phylum Ctenophora. Fluorobrachia, Tinoplana. Phylum Platyhelminthes. Tinea tape, worm, Fasciola liver, fluke, Planaria regeneration. Phylum Aschelminthes. Wait. पहिलं कसं बोलायचं होतं आम्ही माहितीये का, की पहिलं मी बोलायचं पुढे, नंतर माझ्या मागे स्टुडंट बोलायचे, है ना. तर आज तुम्ही दोघे जण आहात, तर एक जण कोणतरी पुढे बोला, त्या मागे एक जण बोलाल, दॅट विल बी द बेटर, आणि हे पण होणार नाही. ओके, हा कोण बोलतो पुढं, त्याच्या मागे एक जण पाठीमागे बोला. ओके सर, मी पहिले बोलते आणि देन स्टार्टिंग पासून का सर? Aschelminthes. ओके. Phylum Aschelminthes. Phylum Aschelminthes. Ascaris roundworm. Ascaris roundworm. Bucheria filaria worm. Bucheria filaria worm. Ankylostoma hookworm. Ankylostoma hookworm. Phylum Annelida. Phylum Annelida. Nereis dioecious. Nereis dioecious. Ferritima earthworm. Ferritima earthworm. Hirudinaria blood-sucking lich. Hirudinaria blood-sucking lich. Phylum Arthropoda. Phylum Arthropoda. The largest phylum. The largest phylum. Economically important insects. Economically important insects. Apis honeybee. Apis honeybee. Bombyx silkworm. Bombyx silkworm. Bucheria filaria worm. Laxifer lac insect. Laxifer lac insect. Vectors. स्टेबल राहा, टेन्शन नका घेऊ, हळूहळू बोला, काय प्रॉब्लेम नाही. हा. Yes sir. Anopheles malaria. Anopheles सर, मी म्हणते ती मला रिपीट करेल. चालेल, तसं करा, काय प्रॉब्लेम नाही, इट डझंट मॅटर. हा चला. Vectors. Anopheles malaria. Anopheles malaria. Culex filariasis. Culex filariasis. Culex Japanese encephalitis. Culex Japanese encephalitis. Aedes dengue. Aedes dengue. Aedes chikungunya. Aedes chikungunya. Gregarious pest. Gregarious pest. Living locust. Living fossil. Living fossil. Limulus king crab. Limulus king crab. Phylum Mollusca. Phylum Mollusca. Second largest phylum. Second largest phylum. Pilla apple snail. Pilla apple snail. Pinctada pearl-oyster. Pinctada pearl-oyster. Sepia cuttlefish. Sepia cuttlefish. Loligo squared. Loligo squared. Octopus devilfish. Octopus devilfish. Aplysia sea head. Aplysia sea head. Dentalium tusk shell. Dentalium tusk shell. Chitopleura chiton. Chitopleura chiton. Phylum Echinodermata. Phylum Echinodermata. Asterias starfish. Asterias starfish. Echinus sea urchin. Echinus sea urchin. Antedon sea lily. Antedon sea lily. Cucumaria sea cucumber. Cucumaria sea cucumber. Ophiura brittle star. Ophiura brittle star. Phylum Hemichordata. Phylum Hemichordata. Sacoglossus. Sacoglossus. Balanoglossus. Balanoglossus. Phylum Chordata. Phylum Chordata. Subphylum Urochordata. Subphylum Urochordata. Ascadia Ascadia. Ascadia. Salpa. Salpa. Doliolum. Doliolum. Subphylum Cephalochordata. Subphylum Cephalochordata. Branchiostoma. Branchiostoma. Amphioxus or lancelet. Amphioxus or lancelet. Subphylum Vertebrata. Subphylum Vertebrata. Class Cyclostomata. Class Cyclostomata. Petromyzin lamprey. Petromyzin lamprey. Myxin hackfish. Myxin hackfish. Subphylum Ostricthites. Subphylum class Ostricthites. class Ostricthites. Chondrichthyes ना.
प्रिस्टिस ऑफिस झालं. येस सर क्लास कॉन्ट्रॅक्ट क्लास ऑस्टिक्थाइस. क्लास बघा मग क्लास कॉन्ट्रॅक्ट Yes. Collodion dogfish, Collodion dogfish, Pristis sawfish, Pristis sawfish, Carcharodon great white shark, Ancharodon great white shark, Trigon stingray, Trigon stingray, Torpedo electric ray, Torpedo electric ray, class contract thighs, marine water fishes, Exocetus flying fish, Exocetus flying fish, Hippocampus sea horse, freshwater fishes, Labio rohu, Catla, Clarius magur, aquarium fishes, betta fighting fish, Pterophyllum angelfish, class amphibia, Bufotod, rana frog, hyla tree frog, salamander, Ichthyophis limbless amphibia, class reptilia, Chelon turtle, Testudo tortoise, chameleon tree lizard, Calotus garden lizard, Hemidactylus wall lizard, Crocodylus crocodile, alligator, poisonous snakes, Naja cobra, Vipera viper, Bangarus crate, class apes, Corvus crow, Columba pigeon, Citicula parrot, Struthio ostrich, Pavo peacock, Aptenodytes penguin, Nephron vulture, class mammalia, Oviparous mammal, Ornithorhynchus platypus, Viviparous mammal, Macropus kangaroo, Pteropus flying fox, Camelus camel, Macaca monkey, Ratus rat, Canis dog, Felis cat, Elephas elephant, Equus horse, Delphinus common dolphin, Balaenoptera blue whale, Panthera tigris tiger, Panthera leo lion. Thank you, sir. थँक्यू. बहुत ही बढिया. थँक्यू सो मच. ऍक्च्युली Thank you, sir. आम्ही असंच बोलायचो, मी पुढे बोलायचं, मागे स्टुडंट बोलायचे, पण ते आता थोडं मॅच होत नाही म्हणून आपण मीच बोलत राहतो किंवा कुठले तरी स्टुडंटच बोलतात. बहुत बढिया. आता तुमचं इंट्रोडक्शन सांगा, कोण मृण्मयी आणि कोण चिन्मयी आहे? So this is Chinmay Bhale ओके and this is Mrunmay Bhale. ओके, चला ठीक आहे. चिन्मय मृण्मयी अभिनंदन. आणि Thank you, sir. ह्या वर्षी नाही, 2023 ला तुमच्या दोघींचा पण चांगल्या मेडिकल कॉलेजला नंबर लागावा, लक्षात. Yes. बाकी मी मुद्दाम चार्ट सर्वांसाठी ठेवत आहे. बाकीचे लोक तुम्हाला बघा कसं बोलत आहेत. ओके चलो, आपल्याला एकमेकाला मदत करून एकमेकाचं मोरल जे आहे ते वर करून पुढे जायचं आहे. ठीक आहे, ऍज अ टीम म्हणून सगळ्या स्टुडंटनं, टीचरनं वगैरे. ठीक आहे, चलो. थँक्यू सो मच. Thank you, sir. Thank you, sir. थँक्यू. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलो चलो, बस 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 बस, चलो रुकते हैं अभी. बस बस बस. नाउ प्लीज पे अटेंशन. हम बात कर रहे हैं, इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द फाइलम मोलुस्का. ओके, एंड उसके भी बाद हमने बात की फाइलम इकानोडर्मेटा. बात करेंगे अभी दोस्तों आज फाइलम हेमिकॉर्डेटा.
So this phylum is considered as a subphylum. Initially this phylum is considered, okay, as a subphylum under phylum Chordata. दिसा लागले? Okay, ये जो phylum है दोस्तों, this phylum is considered as a subphylum. Hemichordata is considered as a subphylum initially, earlier stage में under phylum Chordata. फिर बाद में पता चला अरे ये subphylum नहीं, ये तो separate phylum है. ये भी MCQ है दोस्तों. Hemichordata बहुत ही छोटा टॉपिक है ये. Hemichordata earlier it is hemichordata दोस्तों. Earlier it is considered, earlier आता बघा असं लिहितो actually, this is the correct. Earlier now please pay attention, this hemichordata earlier चला इधर असं लिहायचं मला, मोडून लिहून झालं असतं. Earlier hemichordata is considered as a subphylum. This is correct statement. Considered as a subphylum, is considered as a subphylum under, is considered as subphylum under phylum Chordata. Phylum Chordata, but it is not true. Phylum Chordata. But now दोस्तों, but now it is separate phylum. But now it is separate phylum है. ये खुद एक phylum है. कौन? Hemichordata. Why it is named so? Because it had दोस्तों a rudimentary notochord-like structure called as a stomochord. Why it is named so? Okay. Stomochord नाम का एक structure है. Stomochord. Named so. Why named so? Why it is considered under phylum Chordata? क्योंकि इसके बॉडी में नोटोकॉर्ड लाइक एक स्ट्रक्चर है, उसे कहा जाता है स्टोमोकॉर्ड. साइंटिस्ट को लगा कि यार ये नोटोकॉर्ड ही है, फिर बाद में चला कि यार ये नोटोकॉर्ड नहीं, इसलिए पर ये नोटोकॉर्ड जैसा था तो नोटोकॉर्ड नहीं था, तो इट इज नेम्ड सो, दैट इज हेमिकॉर्डेटा. लगा कि आधे कॉर्डेट है. ओके. their body contain a rudimentary structure in collar region. Contain a rudimentary means बहुत छोटा. Rudimentary structure in collar region. रीजन कौन सा स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन? ये क्वेश्चन आएगा. मैं बताता हूं आपको कॉलर रीजन क्या होता है. रुडिमेंटरी स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन. their body contain a rudimentary structure in collar region known as दोस्तों stomochord. And this stomochord is similar to notochord. It is similar to notochord, but ये notochord थोड़ी है. Okay, stomochord दोस्तों a structure similar to notochord, but it is not notochord. A structure similar to notochord. That is दोस्तों stomochord is the characteristic feature of phylum Hemichordata. That's why it is named as. ये notochord भी नहीं, लेकिन notochord जैसा है एक structure, इसलिए इट इज नेम्ड सो हेमिकॉर्डेटा. पर दोस्तों ऐसे तो नहीं बोल सकते ना स्टोमोकॉर्डेटा, नहीं बोल सकते, क्योंकि वी रिस्पेक्ट द पर्सन हु गिव दैट नेम हेमिकॉर्डेटा. हम क्या करते हैं, कभी नाम जल्दी नहीं बदलते, अगर बहुत ही गलत नाम है तभी बदलते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की है और कुछ बहुत सालों बाद उन्होंने रिसर्च किया है, बहुत सालों बाद उन्होंने ये नाम दिया था, तो नाम इतने जल्दी नहीं हटाते हैं बच्चों. We respect the scientist who give that name stomochord. भले उनका नाम मीन्स गलत है या फिर हेमिकॉर्डेटा नाम गलत है, पर उन्होंने हेमिकॉर्डेटा के ऊपर बाकी का बहुत सारा वर्क किया रहता है, इसलिए हम नाम वही रखते हैं. नंबर 1. अभी बात करते हैं दोस्तों हैबिटेट. कैन यू टेल मी हैबिटेट हेमिकॉर्डेटा? आपसे जानना चाहूंगा व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ हेमिकॉर्डेटा. व्हाट इज द हैबिटेट?
नोटोकॉर्ड नहीं है इसमें। मरीन, और कैसी मरीन है, क्या बात है, एक्सक्लूसिवली मरीन। एक्सक्लूसिवली मरीन हैबिटेट होती है दोस्तों, एक्सक्लूसिवली मरीन, एमसीक्यू। कैसी हैबिटेट है, सिर्फ और सिर्फ मरीन। एक्सक्लूसिवली मरीन मींस सिर्फ और सिर्फ ये पानी में ही पाए जाते हैं। एक्सक्लूसिवली मरीन, कौन सा पानी, समंदर का। ओके, और एक्सक्लूसिवली मरीन के लिए हमारे पास निमोनिक्स क्या है, हमारे पास निमोनिक्स है दोस्तों, दैट इज एचपी टेक, और उसमें का एच है हेमिकॉर्डेटा, पी मींस दोस्तों प्रोटोकॉर्डेटा, टी मींस टीनोफोरा, ई मींस इकोनोडर्मेटा एंड सी मींस कॉन्ड्रिक्थाइस। एचपी टेक इज द निमोनिक्स फॉर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल। लिखो गए तो भी हेमिकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, टीनोफोरा, इकोनोडर्मेटा एंड कॉन्ड्रिक्थाइस। एचपी टेक एक्सक्लूसिवली मरीन, बहुत सारे फीचर है हेमिकॉर्डेटा में, याद रखो। ये हैबिटेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। क्यों, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर है, जो कहीं पे भी इंडिया से कहीं पे भी पेपर सेट करने वाला है, वो मास्टर है आइदर इन जूलॉजी और बॉटनी, या फिर उसने पीएचडी की है, वो डॉक्टर है, तो उसने लाइफ के बहुत सारे साल फील्ड के ऊपर भी काम किया है, या ऐसे ही रीडिंग रूम में बैठ के वो डॉक्टर नहीं बना है, पीएचडी किए तो कहीं तो भी फील्ड के ऊपर जाके काम किया होगा। सपोज मान लो कि उसने किसी, उसका इंटरेस्ट था हेमिकॉर्डेटा में, तो उसके लिए हैबिटेट क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर उसको हेमिकॉर्डेटा की हैबिटेट नहीं पता चलती, सिर्फ इतना ही पता चलता कि वो एक्वेटिक है, तो वो लाइफ टाइम भी अगर लेक या फिर रिवर में उनको ढूंढता तो नहीं मिलते, उसको समुद्र में ही जाना होता है, तभी जाके आपको मिलेंगे हेमिकॉर्डेटा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हेमिकॉर्डेटा याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, हैबिट और सॉरी हैबिटेट। नंबर सेकंड पॉइंट दैट इज दोस्तों हैबिट। हैबिट क्या है, इनकी हैबिट क्या है, व्हाट इज द हैबिट, कोई मुझे बता सकता है। हेमिकॉर्डेटा, ओके ओके, एचपी टेक, परत सांगू का, लिहून देऊ का एचपी टेक बेटा। एच म्हणजे हेमिकॉर्डेटा, लिहा, एच मीन्स हेमिकॉर्डेटा, पी मीन्स प्रोटोकॉर्डेटा, पी का मतलब क्या है बेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, लिखो। एच मीन्स हेमिकॉर्डेटा, पी मीन्स प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है, समझते। टी मीन्स टीनोफोरा, टी का मतलब क्या है, टीनोफोरा। ई मतलब इक्कानोडर्मेटा, ईचा काय अर्थ आहे, इक्कानोडर्मेटा अर्थ असतो, ई मतलब इक्कानोडर्मेटा, ठीक है। आणि सी मतलब कॉन्ड्रिक्थाइस, सी चा काय अर्थ आहे, कॉन्ड्रिक्थाइस, सी चा अर्थ असतो कॉन्ड्रिक्थाइस, ठीक आहे, असा त्याचा अर्थ आहे। उनकी एक बहुत ही फेमस ये है दोस्तों, ये जो है हैबिट, दे बरीड देमसेल्स, they buried themselves, they buried themselves, they buried themselves, okay, below the soil surface, below the दोस्तों below the soil surface। तो आप soil सर बोल रहे, they are benthic animal, ये कैसे है, benthic animal होते हैं हेमिकॉर्डेटा, ओके, benthic animal होते हैं। एचपी टेक नहीं समझा, they buried themselves below the soil surface। एचपी टेक मीन्स हेमिकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, टीनोफोरा, इकोनोडर्मेटा एंड कॉन्ड्रिक्थाइस नाम का क्लास है। प्रोटोकॉर्डेटा में दो आते बेटा राहुल, आगे चल कल बताऊंगा मैं, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों हमें पता है, दैट इज स्टिल, अभी दो ही बार मैं बोलूंगा, हेमिकॉर्डेटा और आगे वाला जो फाइलम है कॉर्डेटा, बाकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अभी ये कल परसों से रिवाइज नहीं होने वाला है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन पोरिफेरा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन सिलेंट्रेट एंड टिनोफोरा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन प्लैटीहेल्मिन्थस एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन एस्केहेल्मिन्थस ऑनवर्ड। तो ये एस्केहेल्मिन्थस ऑनवर्ड है दोस्तों, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ बात करते हैं दोस्तों बॉडी सिमेट्री की। नाउ बॉडी सिमेट्री जो है, बॉडी सिमेट्री, you all know that दोस्तों, बॉडी सिमेट्री
तो मोस्ट ऑफ द स्पंजेस आर asymmetrical. Some students are ready for CET, means some sponges are, and Coelenterata, Echinodermata, adult and ctenophora are radially symmetrical. और बाकी के सब कैसे है? बायलैटरल सिमेट्री होगी दोस्तों। कैसे सिमेट्री होती है? बायलैटरल सिमेट्री है। ओके, नाउ फिर आ जाएगा दोस्तों इसके बाद कौन सा फीचर है? दैट इज जर्म लेयर चाहिए, जर्म लेयर। और जर्म लेयर में मेरे पास निमोनिक्स है, दैट इज PCC आर डिप्लोब्लास्टिक, मींस पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा आर डिप्लोब्लास्टिक। बाकी ये क्या होंगे दोस्तों? दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मींस 3 टाइप ऑफ जर्म लेयर है। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 टाइप ऑफ जर्म लेयर, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। फिर दोस्तों सीलोम, बॉडी कैविटी व्हिच इज लाइन्ड बाय मेसोडर्म, तो सीलोम होगी। सीलोम है क्या? तो मेरे पास निमोनिक्स क्या है सीलोम के लिए? मेरे पास निमोनिक्स है दोस्तों एसके हेलमिंथस इज इक्वल टू सूडोसिलोमेट, below SK helminthus acylomate, above SK helminthus coelomate. तो दोस्तों these are coelomate animal, these are coelomate animal। फिर बात करेंगे सेगमेंटेशन के बारे में। सेगमेंटेशन के पास, सेगमेंटेशन के लिए मेरे पास निमोनिक्स है, सेगमेंटेशन के लिए मेरे पास निमोनिक्स है क्या? बात करते देखता हूं, तो है ना मेरे पास निमोनिक्स, दैट इज AACR सेगमेंटेड। क्या है दोस्तों? AACR सेगमेंटेड मींस दैट इज AACR segmented means SK helminthus, Annelida and chordata are segmented. SK helminthus, sorry, I'm so sorry, Annelida, Arthropoda and chordata are segmented. AAC are segmented means Annelida, Arthropoda and chordata are segmented. बाकी नॉन सेगमेंटेड है, बाकी सब क्या है? अनसेगमेंटेड, या फिर कहेंगे दोस्तों नॉन सेगमेंटेड है। अनसेगमेंटेड या फिर नॉन सेगमेंटेड है। नोटोकॉर्ड है, यही पे लिखता हूं। Is there notochord? Notochord is absent दोस्तों। नोटोकॉर्ड होता है क्या? नोटोकॉर्ड absent है, नोटोकॉर्ड absent है, that's why they belong to non-chordata, they belong to non-chordata। नर्कॉर्ड है क्या? होता है। कैसा है नर्कॉर्ड? नॉन कॉर्डेट में है, वैसा ही है। कैसा? बोलो तो सही। डीवीएस, डीवीएस मतलब क्या? डबल वेंट्रल, डबल वेंट्रलाइन सॉलिड, डबल वेंट्रल सॉलिड। स्टोमोकॉर्ड होता है क्या? हाँ, ये नया फीचर है स्टोमोकॉर्ड, ये नया फीचर है स्टोमोकॉर्ड। कौन सा फीचर है? स्टोमोकॉर्ड है, स्टोमोकॉर्ड होता है। ओके, प्रेजेंट है, ये नया फीचर है स्टोमोकॉर्ड इज प्रेजेंट। स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट है दोस्तों। स्टोमोकॉर्ड इज प्रेजेंट। और ये नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड इन कॉलर रीजन। हे झालं एवढं, पुढे बोलूया। ओके, तो ये तो बहुत कॉमन है दोस्तों। आगे बात करते हैं, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगी और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट है। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है विथ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स दोस्तों, याद रखो एमसीक्यू। जो रेस्पिरेशन होता है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। रेस्पिरेशन इज बाय दोस्तों बाय गिल्स, रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स। ये एमसीक्यू, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होगा। किस टाइप का रेस्पिरेशन कहते हैं इसे? दैट इज कॉल्ड दोस्तों ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बाय गिल्स इसे कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। नाउ प्लीज पे अटेंशन। फिर दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम कैसी है? कैन यू टेल मी द सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप की है? क्लोज्ड और ओपन? बोलो। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। कैसी सर्कुलेटरी सिस्टम है दोस्तों? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन हेमिकॉर्डेटा। ओके, नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए क्या है इनके पास? कोई मुझे बता सकता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, सो दोस्तों प्रोबोसिस ग्लैंड हेल्प इन एक्सक्रीशन। एमसीक्यू, जो प्रोबोसिस ग्लैंड है दोस्तों, प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड, ओके, हेल्प इन एक्सक्रीशन, हेल्प इन दोस्तों, हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, एंड लोकेटेड इन प्रोबोसिस रीजन।
एक प्रोबोसिस ग्लैंड है दोस्तों, दे आर लोकेटेड इन प्रोबोसिस रीजन एंड दे हेल्प इन एक्सक्रीशन। एमसीक्यू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ओके ओके, ये हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक यूनिक फीचर है यहाँ पे, वो मैं बाद में बात करूंगा। सेक्सुअलिटी अगर बात करें, सेक्सुअलिटी तो यूजुअली डायोसियस है दोस्तों। क्या है? यूजुअली डायोसियस। डायोसियस मींस फीमेल एंड मेल सेक्सेस आर सेपरेट, यूजुअली डायोसियस है। फिर बात करेंगे रिप्रोडक्शन, तो यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन कैसा दोस्तों? यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यूजुअली सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज देयर, याद रखो, यूजुअली सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज देयर। फिर दोस्तों बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, तो कैन यू टेल मी फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल है या इंटरनल है? कैसा फर्टिलाइजेशन है? ओके, हॉट टी, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, उसका निमोनिक्स है हॉट टी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उसका निमोनिक्स है दोस्तों हॉट टी। क्या निमोनिक्स है? हॉट टी, समझ लेना चाहिए कैसा है। हॉट टी का मतलब है दोस्तों HOTTEA, हॉट टी, मतलब H फॉर हेमिको असेक्सुअल, सॉरी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट इन हेमिको, H फॉर हेमिकोर्डेटा, O फॉर Ostichthyes, T फॉर टिनोफोरा, T फॉर टिनोफोरा, E फॉर इकोनोडर्मेटा एंड A फॉर एम्फीबियंस, A फॉर एम्फीबियंस, याद रखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नंतर जरा लक्ष द्या, दॅट इज आता डेव्हलपमेंट। काय आहे? डेव्हलपमेंट, डेव्हलपमेंट कशी आहे? डेव्हलपमेंट कशी आहे मुलांना? डेव्हलपमेंट दॅट इज इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट आहे। डेव्हलपमेंट कशी आहे? इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट है, इसमें इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट है। बॅलेनोग्लॉसस, सॅकोग्लॉसस, एक नोट आहे, खूपच बाहेरचा प्रश्न आला तर माहित असू द्या, कमी शक्यता आहे पण आला तर, कारण की ह्याच्यावर प्रश्न आलेला आहे। दैट इज बैलेनोग्लॉसस हैव बोथ वेंट्रल एंड डॉर्सल नर्व कॉर्ड। ये जो बैलेनोग्लॉसस है, बैलेनोग्लॉसस हैव बोथ ventral and dorsal nerve cord, have both ventral and dorsal nerve cord, दोनों तरीके के नर्व कॉर्ड है उसके पास, वेंट्रल एंड डॉर्सल नर्व कॉर्ड एक। एंड हेमिकॉर्डेटा इज कंसिडर्ड एज a connecting link between caudate, non-caudate and caudate. हेमिकॉर्डेटा, नोट नंबर 2, हेमिकॉर्डेटा जो फाइलम है दोस्तों, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट है, कनेक्टिंग लिंक है, connecting link between B/W means between non-chordate and chordate, between non-chordate and chordate, between non-chordate and chordate, याद रखो, between non-chordate and chordate। now क्या है उसका बॉडी फॉर्म? वापस आता हूं पर पहले बॉडी फॉर्म बोलता हूं। जो बॉडी फॉर्म होता है दोस्तों, जो बॉडी फॉर्म है कैसा है? ऑफ कैसी बॉडी है दोस्तों? इन्हें टंग वर्म भी कहा जाता है। बॉडी फॉर्म दोस्तों, इट इज सॉफ्ट, फ्रेजाइल एंड वर्म लाइक बॉडी होती है। बॉडी इज दोस्तों सॉफ्ट, बॉडी ऑफ दैट एनिमल इज सॉफ्ट, फ्रेजाइल, टूट जाती है थोड़े थोड़े, इसमें फ्रेजाइल है, ओके, एंड वर्म लाइक बॉडी है। दिखते तो एनिमल है पर वर्म लाइक, एनिमल भी, वर्म भी तो एनिमल होते हैं, वर्म लाइक बॉडी होती है दोस्तों। सॉफ्ट, फ्रेजाइल एंड वर्म लाइक बॉडी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। सॉफ्ट, फ्रेजाइल एंड वर्म लाइक एनिमल है। नाउ बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। बॉडी दोस्तों, बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। सबसे एंटीरियर मींस नियर टू माउथ,
एंटीरियर, मिडल एक होगा, और दोस्तों दैट इज पोस्टीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट। जो एंटीरियर पार्ट है उसका नाम है प्रोबॉसिस। क्या नाम है? प्रोबॉसिस। जो मिडल पार्ट है उसका नाम है बच्चों दैट इज अ कॉलर, और जो पोस्टीरियर लॉन्ग पार्ट होता है इसका नाम है ट्रंक। उसका क्या नाम है? ट्रंक। ये जो आपको डायग्राम दिख रही है, ये डायग्राम अगर आपके पास पुराना बुक है तो ये लेबल नहीं होंगे, आपके पास अगर नया बुक है तो ये लेबल होंगे दोस्तों। प्रोबॉसिस मींस टंग लाइक स्ट्रक्चर। प्रोबॉसिस मींस अ टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, याद रखो। प्रोबॉसिस क्या है? टंग लाइक स्ट्रक्चर। क्या है? प्रोबॉसिस है दोस्तों, दैट इज टंग लाइक स्ट्रक्चर है। टंग इसलिए इसे टंगवर्म भी कहा जाता है, टंग लाइक स्ट्रक्चर, और कंटेन प्रोबॉसिस ग्लैंड फॉर एक्सक्रीशन। contain tongue like structure contains proboscis gland of excretion which help in excretion. now ये जो कॉलर रीजन है दोस्तों, कॉलर रीजन होता है ओके, मिडल पार्ट है, मिडल पार्ट contain stomachord, contain stomachord. according to NCERT stomachord is present in दोस्तों कॉलर रीजन। some longest part है trunk, longest part है trunk, longest contain main visceral organ, contain all visceral organ, all visceral organs, okay organs that is in trunk, that is in trunk। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो बेलेनोग्लोसस की डायग्राम जो दिखाई दोस्तों, ये जो बेलेनोग्लोसस की डायग्राम है, मैं जरा निकालने की कोशिश करता हूं। मान लो लाइक दिस, थोड़ा सा चलिए डायग्राम भी फिर भी ओके इतना ही बसणार ते, ठीक आहे, एवढं लक्ष ठेवा। हेमिकॉर्डेटा, बेलेनोग्लोसस, सॅकोग्लोसस।
कभी कभी अच्छा है अपनों से ही बात करो, ओके, कभी कभी अच्छा है कि खुद से ही बात करो। तो वैसे मैं कर रहा था दोस्तों। 3 मेन पार्ट है, और वो 3 मेन पार्ट है, नंबर 1 प्रोबोसिस, जो टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो बाहर आया हुआ है। नंबर 2 है दोस्तों कॉलर, जिसमें है स्टोमोकॉर्ड, और नंबर 3 है ट्रंक। ये 3 मेन पार्ट है। तो ये टंग लाइक फीचर है प्रोबोसिस। तो मेरा माउथ जो है, सपोज ये स्लीट लाइक स्ट्रक्चर माउथ, उससे बाहर आया हुआ है प्रोबोसिस। ये है कॉलर, जिसमें होगा स्टोमोकॉर्ड, और ये लॉन्ग पोस्टीरियर पार्ट होता है ट्रंक। एग्जाम्पल ये क्या दिख रहा है, ये है बैलेनोग्लॉसस, सैक्कोग्लॉसस और बैलेनोग्लॉसस है दोस्तों। ये सैक्कोग्लॉसस और बैलेनोग्लॉसस। फिनिश फिनिश। ये है फाइलम हेमिकॉर्डेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। नाउ प्लीज पे अटेंशन, नाउ प्लीज पे अटेंशन। अभी फाइलम नंबर 11 फटाफट लिखता हूं, फाइलम नंबर 11, और वो है दोस्तों फाइलम कॉर्डेटा। तो कोई मुझे बताएगा कि फाइलम कॉर्डेटा के जो फीचर हम लिखते हैं, ओके, व्हाई इट इज नेम्ड सो? आप में से कोई है कि जो मैं ये पॉइंट लिखता हूं, 17-18 जो पॉइंट है, तो वो मुझे एक्सप्लेन करेगा कि सर इसका ये है वो है? आप में से कोई है? मैं उसको अनम्यूट करता हूँ। ओके, आप में से कोई है? मैं उसको अनम्यूट करना चाहूंगा। ओके, सानवी, आप बताओगे मुझे पॉइंट पूरे? सानवी बेटा, ओके बताओगे? यस, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये ऐसा कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है मुझे, क्या बात है ना? कौन करेगा ये ऑपरेशन? आपने सीनियर, आपके सीनियर ने कहा ये केस कौन हैंडल करेगा? सर मैं। क्या बात है, बोलो बेटा। हेलो वीडियो सर। ऑन। अरे यार ये क्या हो रहा है नीचे यहाँ पर होता है बस। चलो कोई बात, रुक जाओ। हाँ चलो बेटा बोलो। हाँ बोलो बेटा। सर लेवल ऑफ नहीं ऑर्गेनाइजेशन। पहले 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 व्हाई नेम्ड सो? मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर करो। व्हाई नेम्ड सो? सर बिकॉज दे हैव प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। क्या बात है, नेम्ड सो। ओके, नेम्ड सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दोस्तों नोटोकॉर्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ओके, a dorsal rod-like structure which are mesodermal in origin, present on the dorsal side during embryonic development. Now habitat, क्या लगता है आपको क्या क्या हैबिटेट होंगे? सोचो जरा, क्या क्या होंगे हैबिटेट? सर टेरेस्ट्रियल भी होगा, मराइन भी होगा, एक्वेटिक भी हो सकता है। ऑल हैबिटेट, सभी, मतलब टेरेस्ट्रियल, ओके, जो हम है। एक्वेटिक मतलब बेटा बोलो, जो फिशेस है। यस और सर। एरियल हो सकता है कि एरियल बर्ड है ना, एरियल भी होगा सर, एरियल बर्ड है ना। ओके, हैबिट, मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग। हैबिट कैसे? फ्री लिविंग। मोस्टली फ्री लिविंग है, मोस्ट ऑफ देम और ऑल ऑफ देम आर, ऑल ऑफ देम आर दोस्तों आर फ्री मूविंग है। ऐसा कोई है क्या सस्ता है? ऑल ऑफ देम आर फ्री मूविंग। अभी बोलो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बोलो बेटा सनवी बेटा। सर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बात है, फिर से बोलो, मैं जैसे बोलता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ बोलो। सर सबसे पहले निमोनिक से Porifera has cellular level of organization. Coelenterata and Ctenophora have tissue level of organization. Is बोलो बोलो। organ Platyhelminthes has organ level, and Aschelminthus onwards or all have organ system level of organization. क्या बात है सनवी। ओके, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आज सनवी पढ़ाएगी सबको। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर बेटा बात करते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी सिमेट्री। बोलो। सब बॉडी सिमेट्री कॉर्डेट्स की बायलैटरल है। ओके चलो, कैसे? निमोनिक्स। स्पॉन्जेस आर असिमेट्रिकल। और सर आपने रेडियल का एक निमोनिक बताया था कि सम स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर सीईटी
मतलब सम, उसके बाद अडल्ट इकाइनोडर्माटा, टिनोफोरा and Coelenterata are radially symmetrical and remaining are bilaterally symmetrical. बहुत बढ़िया, तो ये रिमेनिंग में आएंगे तो बायलैटरल सिमेट्री होगी बेटा। ना बहुत आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जर्म लेयर इन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ये क्या है दोस्तों, बोलो सन्वी बेटा, ये क्या है? Triploblastic. ये है Triploblastic. ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या निमोनिक्स है? PCC are diploblastic, Porifera, Coelenterata, Tinophora are diploblastic and rest phylums are triploblastic. ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब So उनमें 3 जर्म लेयर होते हैं और इंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। क्या बात, बढ़िया। सीलोम बेटा, सीलोम सिलोम सेलोमेट है। कैसा, क्या निमोनिक्स है? Ascalminthus is equal to pseudocelomate. Ascalminthus above are all are a celomate and Ascalminthus below all are celomate. ठीक है, क्या बात है। Now what is mean by pseudocelomate? Sir, they don't have proper mesoderm layer. The mesoderm is present in scattered form in form of pouches. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सेगमेंटेशन बेटा, Segmented है sir. ये क्या है, सेगमेंटेड है नॉन सेगमेंटेड है? Segmented है sir. ओके, और क्या है निमोनिक्स बेटा? AAC are segmented. Annelida, Arthropoda and Chordata are segmented. क्या बात। सो दीज आर सेगमेंटेड एनिमल, हम सेगमेंटेड है। दीज आर सेगमेंटेड एनिमल, हम सेगमेंटेड है। ओके, और जो सबसे कब से हम लिख रहे हैं, ये क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट और एब्सेंट? Notochord present. नोटोकॉर्ड इज Present. प्रेजेंट, क्या बात है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। नर्व कॉर्ड कैसा होगा इसमें, नर्व कॉर्ड? Dorsal, hollow and single nerve cord. क्या बात है। नर्व कॉर्ड इन कॉर्डेट, यहां से लिखना शुरू करता हूं। कैसा होगा नर्व कॉर्ड बेटा? Sir, dorsal, hollow, single. बाकी Okay. में डबल वेंट्रल और सॉलिड होता है। ओके, ठीक है। इट इज डीवीएस, मैंने कहा था ना, डबल वेंट्रल सॉलिड, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंगल, बराबर है? यस सर। डॉर्सल और हॉलो। हॉलो, एंड दोस्तों हॉलो। तो इसे याद कैसे रखेंगे? तो इसे बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों याद रखने के लिए। ऐसे याद रखो, दैट इज सुंदर दिसते हेमा। कैसे याद रखेंगे? सुंदर दिसते हेमा मालिनी, हे महत्वाचं आहे पुढं। नसता लिहितान घरी सुंदर दिसते हेमा, घरचे म्हणते कोण आहे रे हेमा, हा कोणत्या बॅचला आहे? तो हेमाचं डिस्क्रिप्शन करायला क्लासमध्ये जातो काय? हा, तर पुढे लिहा ब्रॅकेट मध्ये, अरे मी मालिनीच लिहिलंय, सुंदर दिसते हेमा, हेमा सुंदर दिसते, मालिनी लिहा, रिस्पेक्ट करा त्यांचा। सुंदर दिसते हेमा, ब्रॅकेट मध्ये लिहा, वाटलंच तर मालिनी, आणि हे विसरू नका। मग कोणी पप्पाने बघितलं कोण आहे रे हेमा, त्यांना सांगायचं तसं निमोनिक्स आहे पप्पा। सुंदर दिसते हेमा means single dorsal and hollow notochord is present in chordate and Hema malini belong to phylum Chordata. Yes, हेमा मालिनी belong to phylum Chordata. हे महत्वाचं आहे, मीच लिहितो बाबा, आलं लक्षात? हे महत्वाचं आहे। हेमा मालिनी belong to phylum Chordata. Okay, she is an example of phylum Chordata. सुंदर दिसते हेमा। ओके, तो दोस्तों ये सिंगल डॉर्सल और हॉलो है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये सिंगल से सॉलिड भी तो हो सकता है। ओके, सिंगल से सॉलिड भी तो हो सकता है, सॉलिड। आप देखो अभी हेमा मालिनी और जो धर्मेंद्र है, हिटमैन, हीमैन, सॉरी हेमैन बोलते हैं उसे, हीमैन बोलते हैं, धर्मेंद्र, हिटमैन तो रोहित शर्मा है, धर्मेंद्र। और ये जो धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र, तो बच्चों ये इनकी और हेमा मालिनी की शादी हुई थी, फिर ये साथ रहे और फिर उसके बाद वो अलग भी हो गए, पर उनका डिवोर्स नहीं हुआ है, सिर्फ वो अलग रहते हैं। धर्मेंद्र अकेले रहते हैं, हेमा मालिनी अकेले रहती है, अलग अलग रहते हैं, पर वो अभी भी शादीशुदा है। तो आप कह सकते हैं कि सिंगल है ये ठीक है। हाँ,
घरात राहायची पण तुम्ही हे म्हणू शकताय सुंदर दिसते हेमा, तुम्ही केलेलं डिस्क्रिप्शन आहे. पण आता हे आपण तेवढे तर मोठे नाहीत की हेमा आपल्यापेक्षा म्हणजे तेवढ्या म्हणजे वयस्कर आहेत किंवा रिस्पेक्टेड पर्सन आहेत, म्हणून ब्रॅकेटमध्ये मालिनी. सुंदर दिसते हेमा म्हटल्याच्या नंतर कोणालाही काय वाटणार नाही. आणि हे खरं पण आहे. सिंगल, बरं तुम्ही म्हणलात सिंगल दिसते हेमा, सिंगल दिसते हेमा, हा सध्या त्या सिंगलच आहेत, म्हणजे त्या काही डिवोर्सी नाही आहेत, पण सिंगलच राहतात, एकट्याच राहतात, धर्मेंद्र सोबत राहत नाहीत त्या, इथपर्यंत ठीक आहे. पण तुम्ही जर म्हणालात सॉलिड दिसते हेमा, तर धर्मेंद्रला राग येईल, लक्षात ठेवा. सॉलिड दिसते, सुंदर दिसते आणि सॉलिड दिसते ह्यामध्ये फरक आहे, भाषांमध्ये फरक आहे. सिंगल दिसते आहेत, सिंगल राहतेच, सिंगल सिंगलच राहतात त्या. सुंदर दिसते हे तर अतिशय मनातनं प्रशंसा केली, आणि सॉलिड दिसते हेमा, मग धर्मेंद्रला लागेल, मग ते म्हणेल कोथा खमीना, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तुझे पाताल से भी ढूंढ के तुझे खत्म कर दूंगा, कोथा खमीना, हे असं होऊन जाईल. तर म्हणून सॉलिड दिसते हेमा नाही तर सुंदर दिसते हेमा. सो सिंगल डॉर्सल एंड हॉलो is the nerve cord that is present in chordata, याद रखो. and हेमा मालिनी belong to phylum chordata. ये हो गया उसका नर्व कॉर्ड के बारे में, नर्व कॉर्ड. ओके डन. ओके चला, अमेशनं तर सुंदर, धर्मेंद्र आणि हेमा असं भी लक्षात ठेवा, काय प्रॉब्लेम नाही. ओके ओके बहुत बढ़िया. चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. नाउ सनवी बेटा आप अनम्यूट हो ना, हाँ चलो बोलो. अभी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, बोलो. ये हो गया पॉइंट. कंप्लीट. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब बेटा सनवी, मतलब क्या है इसका? मतलब डाइजेशन के ऑर्गन्स है स्पेशलाइज्ड. हाँ सॉरी, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है, आपको क्या समझ में आता है? मतलब सब, मतलब उनमें डाइजेशन के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट है, ऐसा बोल सकते हैं ना? नहीं, डाइजेस्टिव बराबर है, पर ओपनिंग के बारे में कुछ, ओपनिंग. सो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है. हाँ, दो ओपनिंग होते हैं, बोथ, दैट इज एनस एंड माउथ. यस, इसे कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या स्ट्रक्चर दोस्तों? रेस्पिरेटरी सिस्टम में अभी हमें क्या देखना है? फार्बियम, फिश, एम्फीबियंस, बर्ड और मैमल्स. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में दोस्तों आएंगे दैट इज गिल्स, रेस्पिरेशन कैन बी विद गिल्स. फिर दोस्तों गिल्स के बाद आएंगे दैट इज रेस्पिरेशन में लंग्स आएगा, लंग्स से होता है, और इट कैन बी रेस्पिरेशन कैन ऑकर थ्रू द स्किन इन एम्फीबियंस. नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम कैसी है? क्लोज्ड. क्लोज्ड या फिर ओपन. सर्कुलेटरी सिस्टम दोस्तों याद रखो, ये है क्लोज टाइप. कैसी है? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, क्लोज टाइप. यहाँ पे एक एक्सेप्शन लिख रहा हूं, अगर आया तो सोचने का है, वरना नहीं. एक्सेप्शन है एक, अगर आया तो, आने के चांसेस कम है, एक्सेप्ट जो यूरो कॉर्डेटा है ना, उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. एक्सेप्ट यूरो, दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. पर ये मैं पढ़ाता नहीं हूं कभी, जस्ट एक बार बता के रखता हूं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पूरे कॉर्डेट में सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड है, पर यूरो कॉर्डेटा में ओपन है. अगर स्पेशली आता है क्वेश्चन कि सर्कुलेटरी सिस्टम इन यूरो कॉर्डेटा इज, या फिर यूरो कॉर्डेटा और यूरो कॉर्डेटा और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कोई सेपरेट एमसीक्यू आता है दोस्तों, तो याद रखो उसमें ओपन है, या फिर अदरवाइज कंसिडर करो कि क्लोज ही टाइप है, क्लोज ही टाइप है दोस्तों. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये होगा सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ आगे बढ़ते हैं और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं. एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो दोस्तों 3 सब फाइलम होते हैं, याद रखो. यू एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट इज न्यूरल ग्लैंड होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, न्यूरल ग्लैंड किसमें दोस्तों? इन यूरो कॉर्डेटा, न्यूरल ग्लैंड इन यूरो कॉर्डेटा. कोई मुझे बता सकता है कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन सेफेलोकॉर्डेटा क्या है दोस्तों? दैट इज प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया इन सेफेलोकॉर्डेटा, इन सेफेलोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा याद रखो,
सेफेलोकॉर्डेटा एंड दोस्तों फिर आएगा दैट इज किडनी इन वर्टिब्रेटा। किडनी, ये 3 सब फाइलम है इन वर्टिब्रेटा। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम। किसी को बिलीव नहीं होगा कि न्यूरल ग्लैंड, नाम तो न्यूरल है एंड दे हेल्प इन एक्सक्रीशन, यस, ये भी मिसनोमर है, दे हेल्प इन एक्सक्रीशन। किडनी होती है वर्टिब्रेटा में। ये होगा दोस्तों एक्सक्रीटरी सिस्टम। सीएनएस तो हाईली डेवलप्ड है, ब्रेन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में बात करते दोस्तों सेक्सुअलिटी। बोलो ये डायोसियस है, आपको क्या लगता है बेटा सनवी? So mostly dioecious. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये आपको पता नहीं था इसलिए मैंने कहा मोस्टली डायोसियस है, यूजुअली डायोसियस है। कोई एक्सेप्शन आपको पता है? यूजुअली डायोसियस एक्सेप्ट हैगफिश, मैगजीन हैगफिश। ओके, मैगजीन जो हैगफिश है दोस्तों वो मोनोशियस होता है। हैगफिश लक्षात ठेवा इज एक्सेप्शन है। तो एच फॉर हैगफिश, एच फॉर जो मोनोसियस है उसके लिए नाम है हर्मैफ्रोडाइट। तो एच फॉर मोनोसियस, एच फॉर हर्मैफ्रोडाइट, एच फॉर हैगफिश। याद रखो ये हर्मैफ्रोडाइट है, मोनोसियस है हैगफिश। नाउ रिप्रोडक्शन बोलो बेटा, असेक्सुअल और सेक्सुअल? Sexual. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा फर्टिलाइजेशन बोलो, फर्टिलाइजेशन बोलो, एक्सटर्नल और इंटरनल? तो ऑस्टिथाइस और एम्फीबियंस में एक्सटर्नल क्या फर्टिलाइजेशन बात होता है, है। यही एक्सपेक्ट था। ओके, इंटरनल होगा फर्टिलाइजेशन जनरली, इंटरनल एक्सेप्ट दो चीजें हैं, ऑस्टिक थाइस जो कि बोनी फिशेस है, और क्लास एम्फीबियंस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ऑस्टिक थाइस और इसमें। फिर दोस्तों डेवलपमेंट कैसी है? डायरेक्ट। डेवलपमेंट दोनों होंगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बराबर है ना? यस सर। डेवलपमेंट हम में डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। एम्फीबियंस में डेवलपमेंट कैसे? इनडायरेक्ट है। तो दोस्तों ये है, हम बात कर रहे हैं दैट इज फाइलम कॉर्डेटा की बात करें। फाइलम कॉर्डेटा फिनिश, ये है फाइलम कॉर्डेटा। तो युनिक फीचर बोलो सर। टाइम झालेला आहे, थांबूया बस, टाइम झालेला आहे। N2P2 एवढं सांगतो, N2P2 आर युनिक फीचर. नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड, paired pharyngeal gill slits and post anal tail. N2P2 are the unique feature. यूनिक फीचर एवढं लिहितो आणि थांबतो, युनिक फीचर, बस बस रुकता हूं। तो दोस्तों याद रखो N2P2, N2P2 हे त्याचे युनिक फीचर आहेत। N2P2, 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 N2P2. N म्हणजे नोटोकॉर्ड, दुसरा म्हणजे काय? नर्वकॉर्ड. कसा आहे ते सांगायला, सुंदर दिसते हेमा तसा नर्वकॉर्ड आहे। पी वर ना फॅरेंजियल गिल स्लिट्स असतात, ते पण पियर्ड, आणि पुन्हा पोस्ट एनल टेल आहे। ठीक आहे, खूपच बढिया बेटा सनवी, खूपच बढिया। ही क्लॅरिटी असणं गरजेचं आहे बेटा। बाकीच्यांनी ऐकलं असेल, तिच्यामध्ये जे क्लॅरिटी ना कॉन्सेप्ट मध्ये, टू द पॉइंट, ही क्लॅरिटी असणं गरजेचं आहे। तुम्ही 360 आउट ऑफ 360 पर्यंत जाऊ शकता। ठीक आहे, थँक्यू सो मच सर। ठीक आहे, वेलकम बेटा, वेलकम। आता उद्या मी म्हणू का? उद्याच्याला तुम्ही बोलू शकता। उद्या कोण बोलणार आहे? आता हे संपलं, ह्याच्या पहिले आता संपलं फायलम कॉर्डेटा। आता उद्याच्याला मी सांगतो, आता वेळ संपलाय। आता एक वेगळ्या विश्वामध्ये जाणार आहोत आपण, दॅट इज फाइलम कॉर्डेटा इन डिटेल। फाइलम कॉर्डेटा, फिर उसके अलग अलग सब फाइलम, दैट इज यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा मध्ये पुन्हा ज्ञाथा, अग्न्याथा, फिर ज्ञाथोस्टोमेटा में अलग अलग हो दोस्तों, पाइसेस, टेट्रापोडा, फिर पाइसेस में क्वाड्रिप्थाइस, ऑस्टिकथाइस, और टेट्रापोडा मध्ये ते 6 क्लासेस। हे सगळं उद्याच्याला एक एक एक। H2P2 म्हणजे दोन गोष्टी। H2P2 म्हणजे लास्ट सांगतो, नोटोकॉर्ड आहे, नोटोकॉर्ड आणि नर्वकॉर्ड आहे। पण नर्वकॉर्ड कसा आहे? तिकडे पण असतो नर्वकॉर्ड, पण इकडचा जो नर्वकॉर्ड आहे तो कसा आहे लक्षात ठेवा, तो नर्वकॉर्ड आहे दॅट इज अ सुंदर दिसते हेमावाला। कसला नर्वकॉर्ड आहे? सुंदर दिसते हेमा, सुंदर दिसते हेमा मालिनी म्हणजे काय? दॅट इज सिंगल, लक्षात आहे, विसरतो नंतर।
सिंगल डॉर्सल आणि हॉलो आहे. सिंगल डॉर्सल आणि हॉलो. या डॉर्सलला डबल म्हणतं कोणी, त्या सिंगलला सॉलिड म्हणतं. लक्षात ठेवा, सिंगल डॉर्सल आणि हॉलो आहे. सुंदर दिसते हे. आणि पी म्हणजे काय, पियर्ड फॅरेंजियल गिल स्लिट्स असतात. पियर्ड फॅरेंजियल गिल स्लिट्स आहेत. हे काय असतं उद्याच्याला समजून सांगतो. गिल स्लिट्स असतात, उद्याच्याला समजून सांगतो. आणि पोस्ट अॅनल टेल आहे. डायग्राम पण काढून दाखवतो. पोस्ट अॅनल टेल आहे. उद्याच्याला बोलूया फायलम कॉर्डेटा बद्दल. थँक्यू सो मच. थँक्यू. ओके, थँक्यू सो मच. थँक्यू सर. मी लक्षात ठेवा, 20 आणि 21 तारखेला माझ्या घरी लग्न आहे. 20 तारखेला माझ्या बहिणीच्या मुलाचं लग्न, भाच्याचं, ऋषीचं. आणि 20ला आणि 27 तारखेला माझ्या भावाच्या मुलीचं लग्न आहे, गीताचं. लक्षात, माझ्या कझिनची मुलगी आहे, म्हणजे पण ते आमच्या घरचेच आहेत. तर मी हे 2 दिवस नसणार आहे, लक्षात असू दे. मे बी मदतच एका दिवस मला जावं लागेल. हे 2 लग्न आहेत घरचे, त्यावेळेस तुम्ही थोडंसं ऍडजस्ट करून घ्या. ठीक आहे, बाय. थँक्यू सो मच. थँक्यू. चलो, कसं वाटलं तुम्हाला हे सांगा. कळतं हे? झालं कॉर्डेट? हा झालं. तुमचं लेक्चर असेल तर जाऊ शकता. सिंपल गोष्ट आहे. हे बघा, हे असं लक्षात ठेवायचं सगळं. स्टोमोकॉर्ड त्याचं फीचर आहे. ओके, हे सगळं अप टू दिस काय आहे, हेमिकॉर्डेटा. नाव हे झालं कॉर्डेटा. मला ते डायग्राम, अतिशय महत्वाची डायग्राम आहे ती, जी कॉर्डेटाची डायग्राम दिलेली, फायलम कॉर्डेटा. उद्याच्याला ह्याचं डिव्हिजन बोलूया. फायलम कॉर्डेटाचं सब डिव्हिजन काय काय, सगळे शब्द मैं तुम्हारा एक्सप्लेन करें. क्रैनिएटा, अक्रैनिएटा, ये सब 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 डिटेल में जाएंगे. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू. फिंगर टिप्स वर झाला एक के बस. उद्या कोण एक्झाम्पल बोलतोय, धीरज जाधव मॉर्निंगला. हा, आणि आफ्टरनूनला, मॉर्निंगला धीरज जाधव, उद्या आफ्टरनूनला अश्विनी का, वैष्णवी का, वैष्णवी. ठीक है, वैष्णवी सरनेम बेटा, वैष्णवी मन. ठीक आहे, थँक्यू. भोपळे चालतंय, वैष्णवी काय प्रॉब्लेम नाही. हाँ, परवा मग दुसरं कोणीतरी. थँक्यू सो मच. बाय बाय, टेक केअर. पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो. तुमचे काय डाउट्स असतील तर विचारा मला. मोनॅको फोरा, ये थोडासा बाहेरचा प्रश्न आला. ते अभिजित काय बढिया बोलला रे तू सकाळी, बहुत ही बढिया. अरे बापरे, त्याला सोडून द्या त्या क्वेश्चनला, तो बाहेरचा आला थोडासा. एक हे 21वावं लेक्चर चालू आहे बघा. ते लेक्चर मध्ये नव्हते, ते थोडस हे झालेलं आहे. हे 20वावं लेक्चर चालू आहे. कितवं लेक्चर चालू आहे? 20वावं. लक्षात, 20वावं लेक्चर चालू आहे, हे लक्षात असू द्या. मी लेक्चरचं नाव सुद्धा टाकत जाऊ का 20वावं असं इथून पुढे? हे चांगलं राहील, सोपं राहील तुम्हाला. कुठल्या ह्याच्या नोट्स आहेत? लेक्चर नंबर 20 था ये. ते मध्ये मध्ये थंबनेल तर आले, पण बर. एक ठीक आहे, थँक्यू. डेट आहे ना, काय लक्षात राहते तुमच्या, काय गरज. डेट आहे ना, लक्षात राहते. बढिया. लगेच पाठवतो, काही लोकांनी लिहिलं नसेल तर. चला, भेटून जातील हिमांशू बेटा, भेटून जाईल. सानिका हो बोलली होती यार, सानिका विसरूनच गेलो. ठीक आहे ना, चालतंय, तसं करूया. मी विसरूनच गेलो. सानिका कधी बोलणार होती तू? मॉर्निंगला का? है ना? हा, ठीक आहे.
आणि थोडं थोडं पुरं सॉरी, हे डिसाईड झालेलं बेटा, सानिका आहे आणि रोनक आहे. आणि मग तुम्ही परवा बोलूया. आजचे जे मी बोललो ना त्या दोघे जणी परवा बोलतील, ठीक आहे. N2P2 निक प्रियंका असं करायचं का? करू शकताय. कोण आहे रे हा? मौसमी, क्या बात है. निक प्रियंका, क्या बात है. चालतंय ना, ते लोक दिसतात ना. अरे चांगले. N2P2 निक प्रियंका, कारण की ते दिसतात तुम्हाला ना, कधी पण टीव्ही लावला की ते दिसतात. आपलं नेमोनिक साठवलं पाहिजे. आलं लक्षात. आपलं नेमोनिक्स N2P2 नोटोकॉर्ड, नर्कॉर्ड, पियर्ड फॅरेंजियल गिल स्लिट्स आणि पोस्ट एनल टेल. उद्या चल बोलू. एनसीईआरटी मध्ये दिलं आहे की प्लॅटेल मिंथस अँड अदर हायर फायला हॅव टिश्यू लेवल, विच आर दोज हायर फायला. विधी मंत्री कुठं दिलेलं आहे? नाही नाही, टिश्यू लेवल नाही दिलं. नीट वाचा त्याला. निक प्रियंका, उन्मेष, निक जोन्स माहित नाही तुला? प्रियंका चोप्रा आणि निक जोन्स हे कपल आहे ना. जावाई येतो भारताचा, पॉप सिंगर आहे युएसचा. आलं लक्षात. निक जोन्स काही मूवी मध्ये पण त्यांनी काम केलेलं आहे आणि तो हजबंड आहे प्रियंका चोप्राचा, तर त्याला निक प्रियंका असं म्हणते ते, ठीक आहे. बॅकलॉग कसे कम्प्लीट करू? त्या प्रत्येकाला हे आन्सर आहे. रोज एक लेक्चर बघायला सुरुवात करा. पीके आणि पीके पासून सुरू करा, बॉडी फ्लुइड अँड सर्क्युलेशन. रोज एक लेक्चर बघायला सुरुवात करा, ठीक आहे. तसंच तुम्ही बॅकलॉग कव्हर करू शकताय. जुमानजी मध्ये आहे, बहुत बढिया. जुमानजी मध्ये आहे ते, आलं लक्षात. जुमानजी तुम्ही जर रॉकचा पिक्चर बघितला, ओके, रॉक म्हणजे ड्वेन जॉन्सन, बरोबर आहे ना? त्याचा जर पिक्चर बघितला तर तुम्हाला ते कळलं. जुमानजी मध्ये आहे बघा ते. चलो बाय. चालते, चला बोला. Hi, मनीषा sir. मॅडम बोला. बोला, काय डाऊट आहे? बोला. फ्रॅजाईल बॉडी म्हणजे काय? फ्रॅजाईल म्हणजे तुटणारी एखादी. फ्रॅजाईल म्हणजे एखादं हे असतं ना रे, काय म्हणजे अशी बॉडी असते फ्रॅजाईल की थोडं जरी लागलं तरी पडते, तुटते. जसं कप हा फ्रॅजाईल आहे, कप बशी असते, किंवा एखादं चिनी मातीचे भांडे फ्रॅजाईल आहेत. हा माझ्यासोबत ठेवलेला माठ फ्रॅजाईल आहे. थोडं जरी पडलं लागलं की ते फुटतात, तुटतात. तसं फ्रॅजाईल बॉडी, थोडं जरी तिला मेकॅनिकल इंजुरी झाली की तो त्या बॉडीचा पार्ट थोडे अलग होतील, त्याला म्हणायचं फ्रॅजाईल. केमिस्ट्रीचं लेक्चर सुरू झाले, थांबतो मी. हा, केमिस्ट्रीचं लेक्चर सुरू झालं. मनीषा, बॅलनोग्लॉसिस आणि सॅकोग्लॉसिस सेम आहे का? नाही, अलग अलग आहे. अलग अलग आहे. फ्रॅजाईल हा इंग्लिश शब्द आहे, लक्षात ठेवा. फ्रॅजाईल म्हणजे लवकर तुटणार. बघून घेतो बेटा. हा विधी. चलो बाय बाय बाय.